everyone. Today we are going to study important topic, that is renin, angiotensin, aldosterone mechanism. Renin, angiotensin, aldosterone mechanism. RAAS. Have studied RAAS while reading last lecture. We have come across this word RAAS. Renin, angiotensin, aldosterone mechanism. Now we know that kidney secretes a hormone called renin. Now what is the juxtaglomerular apparatus? Let's study the juxtaglomerular apparatus, structure. A Bowman's capsule, okay, of a nephron. Bowman's capsule of a nephron, and uska PCT हुआ ये, then Henle's loop हुआ, and then DCT हुआ, okay, DCT. When the glomerulus and Bowman's capsule and the DCT, this is DCT, and this is the Malpighian body or the Bowman's capsule. Bowman's capsule are very close to each other, of same nephron, अलग-अलग nephron का नहीं, उसी nephron का. It is a special structure called as, this is called as juxtaglomerular apparatus. क्या बोलते हैं उसको? Juxtaglomerular apparatus. This is called as this part is called as the juxtaglomerular apparatus. Okay. Now what it does, whenever the blood supply to kidney decreases, कितना? Less than 60 mm of Hg. Less than 60 mm of Hg. 60 से भी कम हो गया, हमारा ब्लड प्रेशर is 120/80 mm of Hg, but 60 mm of Hg से कम हो गया the blood pressure, ये blood supply. तो क्या होता है? फिर क्या होता है? इसकी वजह से due to this what happens, the juxtaglomerular apparatus of kidney secretes hormone renin. Actually क्या होता है? रेनिन इन पैसिव फॉर्म कॉल्ड एज प्रोरेनिन रहता है, वो प्रोरेनिन. ये क्या है? पैसिव है, ठीक है. ड्यू टू डिक्रीज बीपी, ब्लड प्रेशर कम हो गया, तो प्रोरेनिन क्या हो गया? रेनिन बन गया एक्टिव, ठीक है, एक्टिव. व्हाट इज अ रेनिन? इट इज अ hormone. It is a hormone. Now renin will do what? It will travel in the blood, है ना? It will travel in the blood. Blood से it goes to liver vessel. किधर? Liver vessel. Now in the liver vessel there is a molecule called as angiotensinogen 1. ये पैसिव है, P मतलब पैसिव. Because of renin ब्लड में होने की वजह से, because of renin की वजह से एंजियोटेंसिनोजन 1 बन जाएगा एक्टिव एंजियोटेंसिन 1. ड्यू टू रेनिन it will become angiotensinogen 1 से angiotensin 1 which is active. रेनिन की वजह से ये बन जाएगा
टेंसिन 1 ये है एक्टिव। Now angiotensin 1 will again go into blood से it will go to lungs, फेफड़ा हमारा lungs में क्या होता है, alveoli होता है, alveoli lungs में small unit of lung is called as alveoli, और वो alveoli में होता है there is a molecule called as angiotensinogen 2, क्या है उसका नाम, angiotensinogen 2, ये क्या है, पैसिव है। Now because of renin नहीं, because of angiotensin 1, ये angiotensin 1 की वजह से, ये angiotensin 1 कन्वर्ट किया एंड ये एक्टिव है, ये मतलब एक्टिव। अब एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, इट विल गो टू एड्रिनल ग्लैंड, नाम सुना है तुमने एड्रिनल ग्लैंड, तो एड्रिनल ग्लैंड में जाके क्या करेगा, टू प्रोड्यूस अल्डोस्टेरॉन, क्या हार्मोन, अल्डोस्टेरॉन। अल्डोस्टेरॉन क्या करेगा, इट विल एक्ट ऑन डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, ये डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन में काम करेगा, इट विल एक्ट ऑन डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। अल्डोस्टेरॉन क्या करेगा, एक्ट ऑन, it will act, it acts on DCT of nephron, causing reabsorption of sodium and water, जिससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है, इट विल कॉज वैसो कंस्ट्रिक्शन। व्हाट इज वैसो, द वर्ड वैसो का मतलब होता है ब्लड वेसल। नाउ ये जो पार्ट है ये नॉर्मल ब्लड वेसल है, ये नॉर्मल है, पार्ट रोहित कर रहा है ये डायलेटेड, क्या हो गया, डायलेटेड, ये नॉर्मल से डायलेट हो गया और ये कंस्ट्रिक्टेड, समझ में आया क्या? तो दिस इज द डायलेटेड, दिस इज द कंस्ट्रिक्टेड, तो ये वासो डायलेटेशन बनेंगे, ये वासो कंस्ट्रिक्शन। जब ये कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा कि कम होएगा, बढ़ेगा ना, इट विल इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। एंड ये क्या करता है, वाटर को रीअब्सॉर्ब कर देगा, अब वाटर डीसीटी से रीअब्सॉर्ब होकर ब्लड में जाएगा तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। इन बोथ द वे क्या होता है, इट इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर, क्या होता है, द बीपी इंक्रीजेस। इन बोथ द वे क्या होता है, बिकॉज़ बोथ द वे, इन बोथ द वे क्या होता है, द ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस। This is the renin-angiotensin aldosterone mechanism for control of blood pressure. Something very interesting. Vampire bat from South America is nocturnal. Nocturnal means they are active at night. It feeds on the blood of large birds. बड़े बड़े birds and large mammals के ऊपर वो feed करता है। कोई बड़ा bird हो गया, कोई बड़ा mammal हो गया, उस पे वो feed करता है। It has to fly long distance to locate the suitable prey. वो बहुत दूर तक fly करता है अपना prey को locate करने के लिए कि किसको मैं किसका blood पीऊंगा, suck करूंगा। Once found, एक बार अगर उसको मिल जाता है, it can consume blood to an extent of more than half of its body weight. अगर उसका weight 5 kg है तो 2.5 किलो से ज्यादा उसके body weight के
आधे से ज्यादा, ठीक है। इन सच केसेस द बॉडी ऑफ मैन बिकम टू हैवी, बरोबर है। अभी तुम्हारा वेट 50 केजी है और समझो वो 75-80 केजी हो गया, तो चलना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए immediately. To compensate for this, while the bat is feeding, its kidney excrete large amount of dilute urine up to 24% of its body mass. तो while doing this, उसका body blood जो है, किडनी जो है, वो large quantity of dilute urine निकाल देता है। Now bat can fly back to the cave or tree where it can spend the day. तो वहां पे अपना टाइम स्पेंड कर सकता है। During daytime, it cannot go to drink water. At the same time, diet being high on protein, large amount of nitrogenous waste is produced. Instead of diluting waste, kidney resort to concentrated urine in order to conserve water. तो किडनी क्या करता है, concentrated urine बनाता है, क्यों? दिन में उसको मिलेगा नहीं। This capacity of rapid change in osmolality of urine is a classic example of adaptation, that is adjustment. Anti-diuretic hormone act on the DCT of the nephron, ठीक है, and causing reabsorption of water. Last time मैंने famous personality रावण के ऊपर एक स्टोरी बताया था based on anti-diuretic hormone. वो कंटिन्यू यूरिन पास किया, large quantity of dilute urine. Skin also is an excretory organ. Skin is also an excretory organ. It removes waste. Sweat से निकलता है, sweat, और sweat में रहता है your something called as यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, सब रहता है sweat में, ठीक है। देखो ब्लड वेसल्स है, उसमें से वो निकाल देता है। सीबेसियस ऑयल है, ऑयली सिक्रेशन आता है स्किन का, स्वेट पोर्स से निकलता है सीबेसियस ऑयल ग्लैंड। लंग्स, हाँ, इन गर्मी के सीजन में, इन समर सीजन कितना भी पानी पियो, स्वेट निकलता है तो यूरिन कम होता है एंड वेस्ट मटेरियल कम्स आउट थ्रू स्वेट। लंग्स आर आल्सो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं हमारे बॉडी के, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, एंड दिस एक्सक्रीट द वेस्ट एज कार्बन डाइऑक्साइड। लंग इज आल्सो इम्पोर्टेंट ऑर्गन। नाउ कैल्शियम स्टोन्स, किडनी स्टोन्स की बात करेंगे तो डिसऑर्डर्स है किडनी स्टोन्स, कैल्शियम स्टोन्स, यूजुअली कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स, किधर भी किडनी में, अंदर यूरिनरी ब्लैडर में या यूरेटर में स्टोन बन जाता है, उसको बोलते हैं किडनी स्टोन। स्टोन जैसा अपीयरेंस होता है। यूजुअली कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स एंड कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स, ट्रूवाइट स्टोन्स, these are formed in response to bacterial infection caused by urea splitting enzyme. Bacteria, they grow quickly and become quite large. फटाफट ग्रो होके बड़े स्टोन हो जाते हैं। यूरिक एसिड स्टोन in people who don't drink enough water or consume high protein diet can suffer from these kind of stones. Cystic stones, cystine stones. It is a genetic disorder that causes kidney to excrete much more certain amino acids. Now symptoms: intermittent pain, ribcage, backside and sideways, hazy brownish reddish pinkish urine, frequent urge to pass urine, pain during micturition. Micturition is act of urination. Uric acid content of blood बढ़ जाता है in urine. Kidney X-ray shows, सोनोग्राफी ऑफ किडनी, ये सब चीजें हैं, इससे मालूम पड़ता है। यूरेनिया, नॉर्मली blood contains 0.01 to 0.3% of urea, but it can go up to 0.5%. It is called as uremia. ब्लड में यूरिक एसिड या यूरिया बढ़ जाता है। It is harmful and may lead to kidney failure. Nephritis. Nephritis is the inflammation of kidney, glomerulonephritis. Now kidney disease, acute kidney disease होता है, chronic, acute जैसे कि डायबिटीज हो, नहीं acute जैसे कि मलेरिया हो गया और मलेरिया में किडनी फेल हो गया, ठीक है। डायरिया हो गया, डायरिया में किडनी फेल हो गया, इसमें acute किडनी फेलियर होता है। क्रोनिक मतलब बहुत दिन से किडनी खराब हो रहा है, धीरे धीरे, जैसे कि बहुत टाइम से डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ये सब चीजें किडनी खराब करते हैं। इवन कीमोथेरेपी कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। तो अभी ये देखो डायलिसिस है, तो एक हीमोडायलिसिस है, ये देखो पेशेंट का ब्लड है ना, जाता है, देखो ब्लड
पेशेंट का ब्लड गया, यहाँ पे आया, ये मशीन में फिल्टर हुआ, फिल्टर होके ये डायलिसिस सॉल्यूशन में क्या होता है, वो सेपरेट होता है। ब्लड में से जो वेस्ट है इस सॉल्यूशन में जाता है और फिर प्योर ब्लड होके वापस हमारे ब्लड बॉडी में जाता है। ठीक है, तो रिमूव फॉर क्लीनिंग, ठीक है, आर्टिफिशियल मॉनिटर करता है ये पंप, हेपेरिन पंप टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट, नहीं तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो डायलिसिस इम्प्रूव प्रेशर मॉनिटर, फ्रेश डायलिसेट, ओके, डायलाइजर, ये सब चीजें हैं। ठीक है, नाउ अभी आते हैं दूसरा पेरिटोनियल डायलिसिस। तुमको मालूम है पेरिटोनियम, मैंने बताया था स्पेस कॉल्ड एज सीलोम, सीलोमेट, ये देख रहे हो इस स्पेस में, देखो पेरिटोनियम में, ये पेरिटोनियम है, पेरिटोनियल स्पेस है, यहाँ पे देखो एक कैथेटर डाला है, ये ट्यूब डाला है। ठीक है, अब देखो डायलिसिंग विथ वेस्ट प्रोडक्ट ड्रेन फ्रॉम पेरिटोनियल स्पेस, एक ये पंप है, ये अंदर जाता है लिक्विड, और इसका जो वेस्ट मटेरियल है वो वापस यहाँ से रिटर्न आ जाता है। ये ड्रेनेज बैग है, इसका क्या खास बात है कि किधर चलते फिरते भी वो अपना काम कर सकता है डायलिसिस का वर्क, एंड रात को सोते वक्त भी उसका ये काम हो सकता है। ये डायलिसिस इज मोर इजी। ठीक है, पेरिटोनियल डायलिसिस, तो इसमें भी वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द ब्लड रिमूव्ड। देन ओके, किडनी ट्रांसप्लांट। नाउ डायलिसिस इज नॉट अ बिग थिंग, पहले जमाने में लोग डायलिसिस के नाम से डर जाते थे, ऐसा नहीं है, वो बस किडनी को हेल्प करता है। किडनी ट्रांसप्लांट डायलिसिस से काफी अच्छा है, अगर तुमको कोई किडनी देने को तैयार है, हाँ तुम्हारा कोई ब्लड रिलेशन से, तो तुम किडनी ले सकते हो। ठीक है, एक किडनी अगर उसने दे दिया तो लाइफ थोड़ा कंपैरेटिवली मच बेटर रहेगा। So it is an organ transplant of healthy kidney in a patient with end-stage kidney disease. Kidney transplant is categorized as cadaveric. Cadaveric मतलब कोई डेड बॉडी का किडनी ले लिया, डेड बॉडी का, मर गया आदमी, और लिविंग डोनर कोई जिंदा, उसका रिलेशनशिप होना चाहिए। किडनी आर फर्दर क्लासिफाइड एज जेनेटिक रिलेटेड और नॉन रिलेटेड, लिविंग नॉन रिलेटेड ट्रांसप्लांट। ठीक है, तो